Hello students, Namaste. How are you all? Hope all of you are well. I'm SK Jha sir. I'm going to teach you chemistry. Till the previous lecture, I had completed first, second and third chapter. No need to worry for those students who are new. Actually what happens, the students are worried, sir, I have just started in this July month only, how I will complete the syllabus, whatever you have taught, how I will finish the syllabus. So first of all, no need to worry, and congratulations for taking a science. Means you are a confident, you are a brave student, so you have taken a science. Second thing, whatever the chapters I have taught in chemistry, like chapter number 1, chapter number 2, chapter number 3. Chapter number 1 is some basic concepts of chemistry. Some basic concepts of chemistry. Yes, this chapter actually you have already discussed in standard 9 also. No need to worry, I will complete this chapter also. Chapter number 2, atomic structure also. And chapter number 3, classifications of elements and their periodic functions. Periodic functions or periodic properties. Okay, so no need to worry about all these 3 chapters, because whatever the chapters I have taught, these are the basic chapters. No need to worry. In the extra class I will teach you all these 3 chapters, some basic concepts of chemistry, atomic structure and classifications of elements and their periodic functions. Today I am going to discuss chapter number 4. For new students, I am requesting you, first of all, no need to worry, and second thing, we will complete all these 3 chapters in the extra class. Means extra class, especially I will complete these 3 chapters for all the students which have already taken the class of all these chapters. If they also want to attend the class, then they can also join. Today we will start chapter number 4, that is chemical bonding. First of all, see, listen here, chapter number 4, name is only chemical bonding. Chemical, the word which you always use in your life is bonding. Can you tell me what is bonding and why there is a necessity of bonding? What happens to the bonding? Means why? What is bonding? The force of attractions between the 2 atoms or 2 elements, you can say. The force of attraction. The force of attraction. The force of attractions between the 2 elements. First of all, you must know the force of attractions between the 2 elements is called chemical bonding. Remember this word. If anyone will ask you what is chemical bonding, then you can just give a define that when 2 elements get a force of attraction to make a compound, to make a molecule, that is called chemical bonding. Now question is, why chemical bonding? Why any element will attract or repel? So already you know very well, the elements has a nature of completing octet. As you know, we all also have a nature of getting stability. हम सबको एक ख्वाहिश रहती है कि हम स्टेबल हो जाएं जल्द से जल्द फटाफट, मतलब as completing our education, getting a good job in a good organization, getting handsome salary, and we must be settled, right? Similarly, elements also has an affinity to gain octet in its outermost cell or completing the inert gas configuration. जैसे ही उनके वैलेंस सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं, वो अपने आप को स्टेबिलिटी कर सकते हैं. तो ये स्टेबिलिटी कैसे होगा? नेचर लव स्टेबिलिटी. यू नो, नेचर में हर चीज को स्टेबिलिटी अच्छा लगता है. जैसे देखना, आप एक मैंगो का ट्री है, उस पे
एक मैंगो लटका हुआ है, वो चाहता है कि वो जमीन पे गिर जाए और वहां पे वो स्टेबल हो जाए. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, एक्चुअली इट पुल्स टुवर्ड्स द ग्रेविटेशन, मतलब अर्थ की तरफ उसको खींच रहा है ताकि वो आम उस पेड़ से नीचे गिर के धरती के पास समा जाए. कहने का मतलब वो स्टेबिलिटी चाहता है. ठीक उसी प्रकार से कोई भी एलिमेंट्स अपने लास्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है जिससे उसको स्टेबिलिटी मिले. तो ये स्टेबिलिटी होगा कैसे? सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है वैलेंस सेल. व्हाट इज वैलेंस सेल? वैलेंस सेल किसको कहते हैं बताइए? या वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स, आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. तो कोई भी एलिमेंट सबसे पहले या तो वो ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये दो कंडीशंस हो सकते हैं. या तो उसके पास ज्यादा है, ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो वो ट्रांसफर करेगा, ऑक्टेट से कम है तो वो गेन करेगा. दूसरा हो सकता है दोनों शेयर करें, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये 3 कंडीशंस है जिससे कोई भी दो एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है. क्या कंप्लीट कर सकता है? ऑक्टेट कंप्लीट. क्यों ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा? बिकॉज फॉर दैट स्टेबिलिटी, अपनी स्टेबिलिटी के लिए वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा. कोई भी एलिमेंट अपने लास्ट सेल में जो उनके पास इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो एलिमेंट क्या करेगा? सबसे पहले या तो उसके पास ज्यादा है तो वो ट्रांसफर करेगा, कम है तो गेन करेगा, नहीं तो शेयर करेगा. तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में, गेनिंग का या ट्रांसफर का या शेयरिंग का, इसी अट्रैक्शंस ऑफ फोर्स को केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं. टोटल देयर आर 5 or 6 types of bonding I will teach you. In this chapter we are going to go in detail about all the types of bonding. Second thing, that from the beginning of this chapter, as we start this chapter, जैसे हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे तो सबसे पहले हमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा कि कोई भी एलिमेंट किस तरह से अपने आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते. कितने इलेक्ट्रॉन? ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने लास्ट सेल में किस तरह से वो कंप्लीट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कितने टाइप्स के ये केमिकल बॉन्डिंग होते हैं, राइट? तो देयर आर टोटल 6 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. देखो एक छोटा सा मैं तुम्हें सिलेबस का एक प्रीव्यू बता रहा हूँ कि इस चैप्टर में जितने टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग है उसके बारे में हमें पढ़ना है. पहला है हमारा आयनिक बॉन्ड, इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. दूसरा है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड. तीसरा है हमारा मेटालिक बॉन्ड. चौथा है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड. फिफ्थ है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड. और लास्ट है हमारा वंडरवाल्स बॉन्ड. तो ये 6 टाइप्स ऑफ बॉन्ड हमें पढ़ने हैं. ये स्टार्ट करने से पहले हमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर को रिमाइंड करना पड़ेगा कि किस तरह से लेविस ने अपना ये थ्योरी दिया था. तो ये सारे जो मेन 6 टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, इस फुल चैप्टर में हमें इसके बारे में भी डिटेल में जाना है. लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक्स है जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं, उन टॉपिक्स में से एक है कॉजल लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, दूसरा है आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा है बॉन्ड पैरामीटर, फोर्थ है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी या वेस्पर थ्योरी के नाम से वो जाना जाता है. इसके नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको मैंने MOT शॉर्टकट लिखा है, उसका पूरा नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. बॉन्डिंग इन सेम का मतलब होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, अदरवाइज इन डिफरेंट लाइक हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में
किस तरह से इनका मॉलिक्यूल्स का बॉन्डिंग बनेगा, उनका क्या बॉन्ड पैरामीटर्स होगा, कहने का मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड लेंथ कितना होगा, ये सारी जानकारी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और फाइनली लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा कॉजल लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। तो कॉजल साहब ने एक्चुअली उन्होंने कहा कि किसी भी एटम्स के सेंट्रल मतलब न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जिसको कर्नल कहा जाता है। मतलब एटम्स कंटेन पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड कर्नल, KERNAL। उन्होंने कहा कि हर एलिमेंट की ख्वाहिश होती है कि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब अपने आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखें। मतलब लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स में मतलब जितने भी लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल नंबर 8 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में देखा जाता है कि आखिर जिनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेबल है, वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट्स नहीं ले सकते। तो मतलब जिनके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्टेट से कम है तो वैसे इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेंगे। तो सबसे पहला आपने क्या कंसेप्ट समझा कि ऐसा एलिमेंट जिसके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट है मतलब ऑक्टेट नहीं है, अगर वैसे एलिमेंट्स जिनके पास ऑक्टेट नहीं है तो वो एलिमेंट्स ऑक्टेट लेने के लिए, ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए, टू गेन ऑक्टेट और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन दे विल टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लो अगर किसी भी व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है, he is well stable, he do not need to do any business or anything. As well, just suppose Mukesh Ambani, India's richest person, he is well stable. I hope his fourth generation can also eat, then also he will not have a vacant of money or lack of money he will not have. तो क्या जरूरत है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्यों रिएक्शन नहीं करते? क्योंकि वो स्टेबल है। जब आप ये समझते हो कि कोई भी एलिमेंट जिनके पास लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पूरी 8 कंप्लीट हो जाता है, इफ दे आर गेटिंग फुल ऑक्टेट कंप्लीट, देन दे विल नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन because already in their valence shell in their outermost orbit 8 electrons are completed. That's why I have written about the causal Lewis dot structure. G.N. Lewis साहब वो स्पेशली अगर मैं बात करूं G.N. Lewis साहब की तो G.N. Lewis साहब अमेरिकन साइंटिस्ट थे या केमिस्ट थे, आप उनको बोल दीजिए, कि उन्होंने क्या कहा कि हर एक एलिमेंट की ये एफिनिटी होती है, ये चाहत होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखे, अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे पता चलेगा किस एलिमेंट के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो इसलिए आप देख लेना जो भी हमारा ग्रुप नंबर है और सब ग्रुप था, ग्रुप फर्स्ट है, ग्रुप सेकेंड है, ग्रुप थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, जीरो ग्रुप, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, 8 में 3 है, उसके बाद फर्स्ट बी और सेकेंड बी, राइट। 3 to 12 वाले जो जितने भी हमारे ग्रुप नंबर्स हैं, तो उससे पता चलता है हमें कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहते हैं और वो किस तरह से केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लिविस डॉट स्ट्रक्चर। लिविस डॉट स्ट्रक्चर देने से पहले कि लिविस ने क्यों दिया था डॉट स्ट्रक्चर, मैं उसकी भी जानकारी आपको दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वैलेंसी, व्हाट इज वैलेंसी, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा होगा वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी, कैन एनीबॉडी टेल मी? वैलेंसी का मतलब होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन स्टेबिलिटी। वैलेंस और वैलेंसी में याद रखना, वैलेंस का मतलब होता है उसके लास्ट सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है उसके लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन्स, और वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके अलावा उनको कितना कंबाइन करना है उसकी जानकारी हमें देता है। जैसे मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले वैलेंस, किसको कहते हैं वैलेंस? आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है हमारा उसको हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस सेल। अब ये वैलेंस सेल का मतलब लास्ट ऑर्बिट, इसका मतलब होता है आउटर ऑर्बिट। आउटर ऑर्बिट का मतलब हो गया लास्ट ऑर्बिट।
जैसे अगर मैं बात कर लूँ सोडियम की, राइट, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बोलते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के पास में है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, इसमें s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड ऑर्बिट ये हमारा जिसमें s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और p ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स। और ये हमारा थर्ड ऑर्बिट है जिसमें s ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑर्बिट जो है ये है हमारा वैलेंस शेल, ओके। और ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल को हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और मैंने आपको बताया था वैलेंसी के बारे में, अगर कोई पूछे आपको वैलेंसी, तो वैलेंसी का जनरली मीनिंग होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, जो आप लोग 6 7 8 9 10 से पढ़ते आ रहे हो, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ये क्वेश्चन यहां पे पूछता है कि सर अगर यहां पर कंबाइनिंग कैपेसिटी है तो यहां पे सोडियम कंबाइन तो करेगा नहीं, वो तो डोनेट करेगा, ट्रांसफर करेगा, तब इसकी वैलेंसी 1 कैसे होगी? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। यहां पे कंबाइनिंग का मतलब देना भी हो सकता है और लेना, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आल्सो, हियर इट मींस कंबाइन। कंबाइन का जनरली मतलब होता है जोड़ना, बट यहां पे जो मैं कह रहा हूं इस चीज को याद रखना, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, नो डाउट। कंबाइन कैसे? आप किसी को देकर के भी, कोई भी एलिमेंट आपसे यूं ही इलेक्ट्रॉन नहीं ले लेगा, अगर उसके पास भी एफिनिटी होगी, जरूरत होगी, तो ही वो आपसे इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जिसके लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मान लीजिए इसके पास लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, 7 इलेक्ट्रॉन और लेकर के ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी एलिमेंट इतना बेवकूफ तो है नहीं जो इस सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, राइट। तो ये क्या करता है, सोडियम जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पे था क्लोरीन। अब क्लोरीन के न्यूक्लियस में फर्स्ट सेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2s में और 6p में, और थर्ड सेल में इसके पास 2s में और 5p में थे। मतलब इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था ताकि ये लास्ट सेल में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन डोनेट करेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा, वो गेन कर लेगा और ये क्लोराइड आयन बनाएगा। तो ये Na का ये प्लस वाला इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक माइनस वाला इलेक्ट्रॉन मिल करके सोडियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से मतलब जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करके या ले करके, ट्रांसफर करके या गेन करके जो बनाते हैं, इस टाइप के कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहा जाता है, जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, आयनिक कंपाउंड, राइट। लेकिन अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो स्पेशली डिस्कस करेंगे हम लोग लिविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। जीएल लिविस ने सिर्फ सीधा सीधा आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं, अप्रॉक्स 11 से लेकर के 17 तक हर एक एलिमेंट के लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो डॉट करके रिप्रेजेंट करना है, लिविस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे सोडियम 11th है, उसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 डाल देना है। मैग्नीशियम का लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 डॉट डाल देना है। एल्युमिनियम के लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 डॉट डाल देना है। कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4 डाल देना है। नाइट्रोजन में कितने हैं? 5 है, तो 5 डाल देना है। ऑक्सीजन में 6 है, तो 6 डाल देना है। क्लोरीन में 7 है, तो 7 डाल देना है। और बस 17 तक, मतलब 11 से 17 तक वापस अगर आप करना चाहते हैं तो 19 से लेकर के जो है 35 तक। तो इस तरह से अगर आप डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हो, तो लिविस का जो मेन मकसद था कि वो कहना चाह रहा था कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग अभी जो मैंने आपको कहा 11 से लेकर के 17 तक लिविस डॉट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे, क्या था उनका सिग्निफिकेंस, वो सारा अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं 11 से लेकर के 17 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, अदरवाइज यू कैन टेक फ्रॉम 3 to 9 ऑल्सो, और 11 to 17। अभी आपको जो उनका डॉट स्ट्रक्चर है, जो जीएल लिविस और कॉजल साहब ने मिलकर के इसके बारे में
अपना व्यूज रिप्रेजेंट किए थे 1916 में। आखिर कॉजल ने क्या कहा, लिविस ने क्या कहा, वो सबको अगर आप देखोगे तो फिर आपका डाउट क्लियर हो पाएगा, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर 3 से लेकर के एटॉमिक नंबर 17 तक का किस तरह से लिविस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे। तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर लिथियम, यहां से स्टार्ट करेंगे। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और सोडियम से लेकर के सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसे ही सिर्फ हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम जानते हैं लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स में। हाँ, इतना याद रखना। नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फ्लोरीन के कितने हैं? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। सिमिलरली क्योंकि ये ग्रुप में सारे एलिमेंट्स हैं, तो ग्रुप में आप देख लीजिए यहाँ पे क्लोरीन के पास भी कितना होगा? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स फॉर क्लोरीन, 6 electrons for sulfur in the outermost orbit, 5 electrons for phosphorus, 4 electrons for silicon, 3 electrons for aluminium, 2 electrons for magnesium and 1 electron for sodium। ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया है, ये लिविस का सिंबल था कि इस तरह से आप लिख सकते हो कि आप बता सकते हो कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके कुछ सिग्निफिकेंस थे जो लिविस और कॉजल ने दोनों मिलकर के ये जो लिविस डॉट स्ट्रक्चर का जो रिप्रेजेंटेशन किया था, तो उसमें कुछ हमारा सिग्निफिकेंस इसका निकला कि आखिर क्या कारण था कि लिविस ने इस तरह से हर एक एलिमेंट्स का लिखा। तो आप देखोगे ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब ग्रुप नंबर 1 और ये ग्रुप नंबर 17, राइट। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17 के बीच में एक ग्रुप आता है जिसको हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। इसके पास आप देखोगे ऑक्टेट पूरा पूरी कंप्लीट है। इसके पास भी आप देखोगे ऑक्टेट पूरा पूरी कंप्लीट। इसके पास डुएट पूरा पूरी कंप्लीट। तो हीलियम के पास सिर्फ डुएट, बाकी सबके पास ऑक्टेट। जो इनर्ट गैस है हमारा, ये सारे के सारे क्या है? इनर्ट गैस है। और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जानते हैं NH2 NP6, और सिर्फ एक को छोड़ करके इसका NH2 होगा, मतलब ये डुएट होगा, और बाकी जितने भी होंगे ये सब के सब क्या होंगे? ऑक्टेट होंगे। तो यहाँ पे आप देख लोगे डुएट और ऑक्टेट, मतलब ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17, इस दोनों के बीच में ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 18 आता है जिसको हम लोग इनर्ट गैस कहते हैं। ये वेल स्टेबल है, ये केमिकल रिएक्शंस में पार्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस है। क्या है ये? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस है, जिस कारण से ये केमिकल रिएक्शंस में पार्ट नहीं लेते हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आप वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं कि उनके पास जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो या तो उन्हें अपने लास्ट सेल में ऑक्टेट, मतलब सेकेंड सेल में उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, थर्ड सेल में उससे ज्यादा है, या फिर सेकेंड सेल में ही उनके पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन उनको अपॉइंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से सोडियम क्लोराइड में हमें अप्रोच करना पड़ा है। इनका जो सिग्निफिकेंस है, ये सारे सिग्निफिकेंस जो है ऑक्टेट रूल को वैरी करते हैं, ऑक्टेट रूल के लिए ही बने हैं कि आखिर हकीकत में कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सबके सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। याद रखना, जितने भी जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और जितने भी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और ये जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो इन दोनों का जो कंबाइन होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, मतलब ये ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल्स और ये हैलोजेंस, अल्कली मेटल्स और जितने भी हमारे हैलोजेंस हैं,
ग्रुप नंबर 17 हैलोजेंस। तो इन दोनों के बीच में आप देख लेना, सिंस चार्ज का अट्रैक्शन हो रहा है, तो जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा फोर्स लगेगा, इन दोनों को कंबाइन करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कोई भी केमिकल बॉन्ड ऐसे ही नहीं बन जाता, याद रखना कि हर एक एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ अपना नेचर है, जिस नेचर के कारण उनका बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और जो बॉन्ड जिस नेचर के कारण फॉर्म होता है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसीलिए इस बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड कहा जाता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, याद रखना, इसी का दूसरा नाम है आयनिक बॉन्ड। क्या नाम है? आयनिक बॉन्ड। इस चीज को याद रखना है आप लोगों को, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का ही दूसरा नाम है आयनिक बॉन्ड। अब आप पूछ सकते हो मुझे, सर ये कैसे हुआ अल्कली मेटल से हैलोजन? तो जैसे मैंने आपको बताया भी था कि सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस किस तरह से रिएक्शन करते हैं, तो मैं आपको वापस ये ड्रॉ करके बता देता हूं कि किस तरह से सोडियम प्लस या फिर क्लोरीन माइनस अपने लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन किस तरह से कंप्लीट करते हैं। तो इनका जो मेन था ऑक्टेट कंप्लीट करने का जो नियम, स्पेशली फॉर द अल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस के लिए ही था। लेविस साहब का तो उन्होंने देखा कि हर एक सेल का अलग अलग होता है, तो इन्होंने फोर्स किया था ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17 का। तो सोडियम का मैंने आपको बताया था, सोडियम क्या करता है, सोडियम सॉलिड से पहले सोडियम गैसियस होता है और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, और क्लोरीन में ये गैसियस ऑलरेडी रहता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो ये क्लोराइड माइनस आयन। तो आप देखोगे यहाँ पर सोडियम प्लस और ये क्लोरीन माइनस, ये दोनों मिलकर के सोडियम क्लोराइड बनते हैं, राइट। तो ये कंपाउंड, कोई पूछे तो जनरली कोई भी कंपाउंड ऐसे ऑटोमेटिकली नहीं हो जाते, हर एक कंपाउंड का इंटरमीडिएट रिएक्शंस होता है, और इंटरमीडिएट रिएक्शंस की हमें ये डिस्क्राइब करते हैं कि ये कौन सा बॉन्ड है। जो मैंने आपको 6 टाइप्स ऑफ बॉन्ड स्टार्टिंग में दिखाया था कि आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, उस दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा मेटालिक बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर वन वाल, कोई भी बॉन्ड का बीच में एक रिएक्शंस होता है जिसको इंटरमीडिएट रिएक्शंस कहते हैं, जो हम लोग हायर स्टैंडर्ड में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी जो हम लोगों का इसका जो सिग्निफिकेंस है लिविस का, तो ये लिविस का मेन सिग्निफिकेंस यही था ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17 में इन्होंने देखा कि बीच में एक ग्रुप आता है जिसका नाम है ग्रुप नंबर 18 या इनर्ट गैस, जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, उसको किसी भी केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17 के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स जितने भी हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आयंस डोनेट करेंगे या ट्रांसफर करेंगे, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है इसके ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके अपने ऊपर में नेगेटिव चार्ज करेंगे, तो जिस कारण से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और वो बॉन्ड किस कारण से फॉर्मेशन होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण फॉर्मेशन होगा, जिसका बॉन्ड का नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड है। याद रखना, ये फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड है जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। देखो हर एक बॉन्ड का अपना अपना डिस्क्रिप्शन से है, लेकिन मेन कंसेप्ट यही रहेगा कि हर एक एलिमेंट के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उस पे ज्यादा हमें फोकस करना है। और ये तभी पता चलेगा जब आपको ग्रुप नंबर के सारे एलिमेंट्स याद है। जैसे मैं बात करूं, ये ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स है, ये ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स है, ये 13 के, ये 14 के, ये 15 के, ये 16 के, ये 17 और ये लास्ट वाला जो था हीलियम नियन 18 का। और इसको जो आप लोगों ने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या मोस्टली का देखा, तो फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और उसके बाद 0 ग्रुप। तो ये जो है सब ग्रुप में अगर आप जाओगे तो फर्स्ट ए से लेकर के 7th ए तक आपने देख लिया कि इनके वैलेंस सेल में जो डॉट लिया, देखो ये मैंने एक्स के रूप में भी रिप्रेजेंट किया है। अगर आप एक्स में नहीं करना चाहते हो तो जस्ट रिप्रेजेंट एज अ डॉट। जैसे लिथियम यहाँ पे लिख दिया, लिथियम के पास एक डॉट, बेरिलियम लिख दिया, बेरिलियम के पास 2 डॉट, राइट। अल्युमिनियम लिख दिया, अल्युमिनियम के पास 3 डॉट। तो ये लिविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। मैंने थोड़ा डॉट को बड़ा लिखा है, जो आप लोग कोवेलेंट में देखोगे कि क्यों लिखा जाता है ये एक्स, ये इलेक्ट्रॉन को क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद वाला जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर में होगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको करना क्या है, आपको ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट्स का लिविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, और जो जो एलिमेंट्स
जितने भी इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर मैं बात कर लूं यहाँ पर मैग्नीशियम और क्लोरीन का, तो एक मैग्नीशियम होगा, देख लीजिए यहाँ पर Mg यहाँ पे हो गया, इनके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन है, इनके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, और एक और क्लोरीन है, इनके लास्ट सेल में भी क्या है 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे लास्ट सेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, तो ये जो कंपाउंड बनेगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नीशियम ने ट्रांसफर किया है और क्लोरीन एक क्लोरीन करके एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का दोनों एक्सेप्ट किया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से आपको ये जितने भी इनके सिग्निफिकेंस है, अगर आप लिखना चाहते हो तो उसको नोटबुक में लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जो कुछ भी पढ़ते हो एनसीईआरटी को एक बार ले लो, अपना जो रेफरेंस बुक है उसको कवर कर लो, और रेफरेंस बुक के बाद जब आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक अगर नहीं भी हो, देन ऑल्सो नॉट एन इशू, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रेफरेंस बुक अवेलेबल ऑन इंटरनेट, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे एबीसी केमिस्ट्री हो गया, ओपी टंडन का केमिस्ट्री हो गया, आप ये सारे बुक्स को डाउनलोड करके, जेडीली का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, उनका भी केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, तो आप एक नोट्स बना सकते हो, जिस नोट्स के तहत आपको क्या होगा, मजा आएगा कि यस आई एम अंडरस्टैंडिंग और नॉट, गेटिंग द होल कंसेप्ट और नॉट। मैं आप लोगों को ये सारे जितने भी इनके सिग्निफिकेंस है लेविस के, वो सब मैं आपको लिख देता हूं। आप लोग कॉपी तो एटलीस्ट कर सकते हो, अगर आप लोग नोट्स नहीं बना सकते तो एटलीस्ट व्हाटएवर आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड जस्ट ट्राई टू कॉपी इट। ओके, सो लेट्स राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर। So as you have seen, I have already informed you to make notes of this chapter. As you can see behind, इस बोर्ड पर जो भी मैंने कुछ लिखा है उसे आपको नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड के बारे में, किस तरह बॉन्ड फॉर्मेशंस होते हैं, क्या ज़रूरत है बॉन्ड के फॉर्मेशंस का। तो उसके बाद जो मैंने डिस्कस किया था, पहला बॉन्ड था आयनिक बॉन्ड, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसके डिटेल में सबसे पहले कॉजेल और लेविस साहब आए थे कि आखिर किस मतलब क्या जरूरत पड़ी केमिकल बॉन्डिंग की। तो उन्होंने कहा था कि किसी भी एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, उसको उन्होंने डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले ऊपर में लिखा है, लेविस सिंबल, द इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल आर द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स एंड सच आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स in the chemical combinations is called valence electron। किसी भी एलिमेंट का जो आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है, मैग्नीशियम का 2 है, एल्यूमिनियम का 3 है, सिलिकॉन का 4 है, फास्फोरस का 5 है, सल्फर का 6 है, क्लोरीन का 7 है। तो ये जो मेन था, ये था लेविस सिंबल के बारे में। उनका मेन मानना यही था कि लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम लोग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और यही वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स हमें जानकारी देती है वैलेंसी की, कि जितने इनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितना इलेक्ट्रॉन्स इनको चाहिए कि ये अपने लास्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे देख लीजिए, इनके सिग्निफिकेंस में जो मैंने आपको अभी कहा उस बारे में डिटेल दिया हुआ है। सबसे पहले आपको समझ लेना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स, जिसको लेविस सिंबल के थ्रू भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको डॉट, उतने डॉट के थ्रू हमें रिप्रेजेंट करता है, दैट इज कॉल्ड लेविस सिंबल। सेकंड वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ लेविस सिंबल। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस? The number of dots in the Lewis symbol represent the valence electrons by which the valencies can be calculated. As for example, if I talk about here magnesium, you can see here, as we remove the 2 electrons from the magnesium, we get NS2 NP6 configuration. तो इसकी valencies 2 होगी. Similarly, if we remove 1 electron from the sodium, then the octet will be completed of sodium. So the valency of sodium is 1. If I talk about the aluminium, if I remove the 3 valence electron from the outermost orbit of the aluminium, then it gets the inert gas configuration, that is NS2 NP6. कहने का मतलब सीधा सीधी समझ जाओ, किसी भी एलिमेंट में से कितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने पर या अंदर लेने पर उनका जो ऑक्टेट कंप्लीट होता है उसे उसकी वैलेंसी कही जाती है। जैसे मान लीजिए सिलिकॉन है, सिलिकॉन में और अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन दे दें तो इसका इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए तो इसकी वैलेंसी 4 होगी। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये पांचों निकालेगा नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसकी वैलेंसी 3 होगी।
सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दें तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर हम इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। तो ये मेन था, that was the significance of Lewis symbol, that how you will be able to understand what are the valencies of different elements. By calculating the valence electron, you will get the information about the valencies of different elements. Second was the causal in relation to the chemical bonding. Due attention to the following facts. Causal और लेविस, इन दोनों का जो संगम था, इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, उसके बाद जो मेन एजम्पशंस निकले हुए थे हमारे कि आखिर किस तरह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इनका मेन मकसद यही था आयनिक बॉन्ड। इन दोनों साइंटिस्टों ने सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड पर काम किया था। इसके बाद जो सेकंड वीडियो होगा उसमें हम लोग ऑक्टेट रूल या फिर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी हमको सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं causal in relation to the chemical bonding, drew attention to the following facts. causal ने कुछ facts के बारे में दिया था। In the periodic table, the noble gases and नोबल गैसेस का एक क्या मेन मकसद है, उन्होंने सेपरेट किया हैलोजन को और अल्कली मेटल्स को। हैलोजन्स हैं हमारे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स और अल्कली मेटल्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो इस दोनों ग्रुप को, ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 1 के बीच में एक ही ग्रुप आता है जिसको हम लोग नोबल गैस कहते हैं। तो नोबल गैस में क्या क्या पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस हैज सेपरेटेड the halogens and alkali metals, means highly electropositive elements और highly electronegative elements को नोबल गैस ने सेपरेट किया पीरियोडिक टेबल में। दूसरा है in the formation of cation is associated with the loss of electrons and from the valency cell। कहने का मतलब cation कैसे फॉर्म होगा, ये जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है हाउ डू दे फॉर्म, मतलब अल्कली एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, लिथियम से लेकर के सीजियम तक चले गए। तो लिथियम से सीजियम तक सबके लास्ट सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है कि कितनी उनके लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे मैंने लिखा है इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। कैटायन का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, राइट। इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैटायन कैसे फॉर्म होता है, जब वो अपने लास्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जैसे सोडियम है, सोडियम का लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस हो जाएगा। जो चीज मैंने आपको कहा, द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंसी सेल। वैलेंस सेल से जितने भी इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो वो उतना कैटायन चार्ज फॉर्म करेगा। जैसे सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो सोडियम प्लस हो गया। मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे Mg2 प्लस। कैल्शियम में से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे Ca2 प्लस। तो ये जो कैटायन है इट इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल का मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उतना जितना इलेक्ट्रॉन आप लूज करोगे उतने पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर में होते जाएंगे, जिसको हम लोग कैटायन कहते हैं। सिमिलरली उसी तरह से द फॉर्मेशन ऑफ एनायन इज एसोसिएटेड विद द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कैटायन में क्या हुआ, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एनायन में क्या होगा, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे उतना नेगेटिव चार्ज उनके ऊपर में होता जाएगा, उतने एनायंस बनते जाएंगे। तो क्लोरीन है, क्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्लोराइड माइनस आयन Cl माइनस आयन के रूप में फॉर्मेशन हो जाए। F माइनस आयन, Cl माइनस आयन, Br माइनस आयन, O2 माइनस आयन। तो ये जो आप देख रहे हो ये कैसे फॉर्मेशन होगा, बाय द फॉर्मेशंस ऑफ anion is associated with the gaining of electron। जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा anion forms, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो कौन सा होगा, कैटायन का फॉर्मेशन होगा। द नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस, ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस का मतलब क्या हो गया, कैटायंस और एनायन जो है इन दोनों का मेन मकसद क्या होता है, मेन मकसद होता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन करना। ये जितने भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स में इट इज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई इट इज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम कोई पूछेगा आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है, तो आप इजिली यहाँ पे जवाब दे सकते हो, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके नियन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6 को गेन कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर वो सोडियम प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। कोई पूछेगा आपको Cl माइनस आयन यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि Cl माइनस आयन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लेकर के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 3s2 3p6 आर्गन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Cl माइनस उसको गेन कर रहा है। तो इसीलिए कोई भी कैटायन या एनायन अगर आपको कोई पूछे व्हाई दे आर लूजिंग
or gaining the electrons, so you can directly give the answer, because after losing and gaining the electrons, they gain noble gas electronic configuration. Right? Now the next one is the positive and negative charge ions are stabilized by the electrostatic attraction. अब मान लीजिए जितना भी इलेक्ट्रॉन इन्होंने बाहर निकाला, लूज किया, या जितना भी इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने गेन किया, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स एंड इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स after losing the electrons and after gaining the electrons, they are stabilized by the electrostatic force of attraction. जैसे सोडियम प्लस है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और क्लोराइड माइनस आयन है, तो ये Cl माइनस जो है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। अब इस दोनों को, जितने भी दोनों एलिमेंट्स या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स मींस जितने भी हमारे अल्कली मेटल्स हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में जितने भी हमारे हैलोजेंस हैं, इन दोनों को स्टेबलाइज कैसे किया गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गिव्स द फॉर्मेशंस ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये किस चीज की जानकारी देता है हमें? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसका दूसरा नाम है आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे देख लीजिए, सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, इस दोनों को जब ऐड किया तो सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस एक सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बन गया। कैसे बना? दे आर स्टेबलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। कोई पूछेगा आपको विच फोर्स, कौन सा फोर्स लगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण सोडियम क्लोराइड कंपाउंड फॉर्म्ड है। तो यही चीज यहां पे दिया हुआ है, द बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। तो आज जो हम लोगों ने जो भी टॉपिक को डिस्कस किया है, इस सारे टॉपिक को आपको अपने नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको? केमिकल बॉन्डिंग क्यों होता है, आपको सर्च करना है। आज अपने खुद से आप उसको नोट्स बनाइए, और नोट्स बना करके दिमाग के अंदर में आपको क्वेश्चन जनरेट करना है, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? So as I had given you the define the force of attraction between the two elements, or why the force of attraction between the two elements, why sharing of electrons, why gaining of electrons, why transferring or losing of electrons, क्यों लूज करते हैं, क्यों ट्रांसफर करते हैं, क्यों गेन करते हैं, क्यों शेयर करते हैं, इसका रीजन आपको ढूंढना है। उसके बाद आपको कॉजल और लेविस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, व्हाट इज लेविस सिंबल, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ लेविस सिंबल, and finally you have to tell what is the relation in the causal to chemical bonding। केमिकल बॉन्डिंग में कॉजल का क्या रिलेशन था, उन्होंने किस तरह के बॉन्ड की जानकारी दी, ये 4-5 पॉइंट आज आपको सीखने को मिला है, और इसका नोट्स भी आपको बनाना है। जैसे ही आप इसके नोट्स को बनाओगे, ऑटोमेटिकली यू विल गेट अ डिमांड ऑफ राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स, आप फोर्थ के भी लिख सकते हो, फिफ्थ के भी लिख सकते हो, तो आप जितने भी थर्ड सेकेंड पीरियड का ही आप लिखना चाहते हो तो सेकेंड पीरियड के भी आप इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हो। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट समझना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद वैलेंसीज, ये वैलेंसीज और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या सिमिलरिटीज और डिफरेंस है, किस तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसीज की जानकारी देता है, इस चीज को आपको सीखने को मिला। दूसरी बात, यह आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किस फोर्स के कारण होता है और वो फोर्स कैसे जनरेट होता है। कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के कारण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के कारण ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मेशन किस तरह से करते हैं, और उनके द्वारा बनने वाले कितने कंपाउंड हैं, उनका कैटायनिक और एनायनिक रिप्रेजेंटेशंस आप लिख सकते हो। यहाँ पे देख लो, जैसे सोडियम प्लस, अगर हो सके तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको इजीली आप लिख सकते हो, आप इसके बारे में समझा सकते हो किसी को भी कि किस तरह से हमारे लेविस सिंबल का फॉर्मेशन हुआ, व्हाट वर द सिग्निफिकेंस ऑफ लेविस सिंबल, व्हाट वर द सिमिलरिटीज इन द फॉर्मेशंस ऑफ कैटायन एंड एनायन, व्हाट वर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशंस ऑफ attaining the noble gas configurations, how the bond was formed. Each and every detail you have to write in your notebook. After writing the concepts of these things, means significance of Lewis symbol and the causal in relation to the chemical bonding, drew the attention of the following first. तो आज का जो हमारा मेन सेशन था, ये सेशन था हमारा आयनिक बॉन्ड का, जिसमें आप लोगों को सीखने को मिला कि किस तरह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और सबसे बड़ी बात कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का आपने जो इनिशिएशन किया है, इसको आप डिफरेंट बुक से आप नॉलेज गेन कर सकते हो, इसके बारे में ज़्यादा सीख सकते हो, और कोई भी डाउट होगा देन यू कैन लीव इनटू द कमेंट बॉक्स सेक्शन। अदरवाइज एज वी विल गिव
यू द ऑनलाइन क्लास, ये हमारा ऑफलाइन वीडियोस में जाएगा, और जो ऑनलाइन वीडियोस में हम लोग अटेंड करेंगे उसमें आप क्वेश्चन जनरेट कर सकते हो। कोई भी टॉपिक जब कवर होता है, देन यू कैन ask me doubts related that topic that will help you in clearing the competitive examinations, और ये तभी आएगा जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, राइट? So that was our today's video lecture. I hope all of you have enjoyed, all of you have understood. If you have any doubt, then please drop your doubt into the comment box section, or you can ask me also, as I have given you my contact details. You can ask for that also, not an issue. You can ask me in the online classes also, and just take all this knowledge, make a note of this whole concept, and after then we'll meet into the next lecture. In that lecture I will give you the information about the covalent bond. So this whole lecture was fully contradicted to the ionic bond, what were the limitations and significances. That's all. Thank you very much. If you have enjoyed this lecture, don't forget to like and subscribe the channel. Share this video with a friend so they can be also benefited. Thank you very much.